नुकीले आदमी हो, और नुकीले लोग मुझे अच्छे लगते हैं। आजाद बख्शी, नाम क्या है तुम्हारा? रजा शिराजी। जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। जी डॉक्टर, ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल रहा है, खतरे की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ी देर उनको रिकवरी रूम में रखेंगे और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वो भाई है मेरा छोटा। डोंट वरी, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। थैंक यू। क्या बात है, इतना मूड क्यों ऑफ है आपका? ये क्या अर्ज करूं आपसे, ये कोई घर है कि जहां आदमी वापस आए तो साहबजादी को ये तक पूछने की तौफीक ना हो कि क्या बात है अबूजान, खैरियत है, आज आप जल्दी आ गए हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप थके हुए लग रहे हैं, मैं चाय आपको पिलाऊं? मजालिक, ये घर में दाखिल होने से पहले आप नादरा से कहाँ मिल लिए जो इस कदर खफा हो रहे हैं उसके ऊपर? सुभान अल्लाह, यानी आप माँ हैं और आपको ये नहीं मालूम कि साहबजादी अभी अभी गाड़ी में बैठकर कहीं चली गई हैं। अच्छा, आज तो पीर है ना, तो वो तो स्क्वाश की प्रैक्टिस के लिए गई होगी। और मैं क्या किसी हॉस्टल की वार्डन लगी हुई हूँ जो सबके आने जाने का हिसाब किताब रखूं? नहीं, वार्डन तो आप नहीं लगी हुई, लेकिन आप उसकी माँ हैं, आप इस घर की मालकिन हैं, ये तो है ना। तो आते इस कदर शोर मचाते हैं कि इंसान घबरा जाता है। चाय बनवाऊं आपके लिए? जी चाय तो मैं खैर पीऊंगा ही, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये हमारी जो नादरा खानम हैं, बेगम हैं, इनका क्या सिलसिला है इनका? क्या मतलब, क्या कह रहे हैं आप, क्या सिलसिला? वो दिन बर्थडे पार्टी में वो एक लड़का था। दर्जनों लड़कियां थी, कौन सा लड़का? शमीम, ये तो मुझे भी मन नजर आ रहा था कि दर्जनों लड़के और लड़कियां हैं वहां पर, बिगड़े हुए अमीरजादे और अमीरजादियां हैं जो थिरकते फिर रहे हैं इधर उधर सब के सब, लेकिन वो एक लड़का था जिससे हमारी नादरा बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसके तो दोस्तों की एक पलटन की पलटन है, मैं किस किस का नाम याद रखूं? खैर, आप बहस नहीं करना चाहता, बस सिर्फ इतना कह दीजिएगा उससे मेरी तरफ से कि खानदानी रिवायात का, इक़्तिदार का ख्याल रखे, तहजीब के दायरे में रहे।
مجھے تو ایک بات پہ حیرت ہو رہی ہے. میں تمہاری بات سمجھی نہیں. ہم دونوں دیر سے ساتھ ہیں مگر ابھی تک تم نے انجم کا کوئی ذکر نہیں کیا. انجم سے بات ہی اتنی کم ہوتی ہے کہ ذکر کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں. تم دونوں میں سے کون مصروف ہو گیا ہے؟ مصروف تو شاید ہم دونوں ہیں. کبھی اس کا 1 لائن کا ای میل آ جاتا ہے اور کبھی 5 منٹ کا فون. تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ انجم کے رویے میں فرق آ گیا ہے؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی. تم تو جانتی ہو کہ وہ دوست بہت جلدی بنا لیتا ہے اور باہر جا کے اس نے بہت نئے دوست بنا لیے. اور ویسے بھی جب ایک انسان اپنے ملک سے اور اپنے گھر سے دور جاتا ہے تو اس کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مصروفیت کا یہ سیلاب اسے بہا کر دے جائے. ہاں، سیلاب اگر شدید ہو تو بڑے بڑے بند ٹوٹ جاتے ہیں. سیلاب کا زور اگر زیادہ ہو تو پشتیں بھی مضبوط رکھنی چاہیے. کہ میرا خیال ہے کہ تم لندن کا 15 دن کا چکر لگا ہی لو. تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ابو کو اس حال پر چھوڑ جاؤ. تم تو ہر وقت اشرف انکل کا ہی ذکر کرتی رہتی ہو. ہاں، مطلب اگر اشرف انکل ان کا خیال رکھ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی رسپانسبلٹی ان کے سر چھوڑ کر لندن چلی جاؤں. پھر انجم؟ شازیہ، شاید تمہیں خلیل جبران کا وہ جملہ یاد نہیں ہے. کون سا جملہ؟ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزاد چھوڑ. اگر وہ واپس نہیں آتا تو یہ سمجھ لیں کہ وہ کبھی آپ کو اٹھا نہیں دے. تم اور تمہارے یہ فلسفے محض زندگی ان فلسفوں سے بالکل مختلف ہے. لیکن شازیہ، میں سمجھتی ہوں جو فیض نے بات کی تھی نا بالکل ٹھیک کہ اور بھی غم زمانے میں محبت کے. او مائی گاڈ، تم تو ٹریک سے بالکل اتر جاتی ہو. میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا. میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا. دیکھیے نا، اگر آپ نہ ہوتے تو میری جان کیسے بچتی. روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا آپ نے میرے لیے. گالی دیتے ہو مجھے؟ میں سب میں آپ کو کیسے گالی دے سکتا ہوں؟ جب تم روپے کی بات کرتے ہو، احسان کی بات کرتے ہو تو گالی دیتے ہو مجھے، سمجھے تم؟ نہیں، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا. دیکھو، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں تھا. ایک آدھ بار تم پہ نظر پڑی تھی. مختلف لگے تھے تو لوگوں سے. مختلف لوگ اچھے لگتے ہیں مجھے، اچھے لگتے ہیں. جس وقت تمہارے خون کی پہلی بوند میرے ہاتھ میں گری، اس وقت سب کچھ بدل گیا تھا. دنیا میں دودھ شریک بھائی تو ہوتے ہیں، لیکن تم میرے خون شریک بھائی ہو. خون شریک بھائی. ہاں بھائی. رضا کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، کچھ پتہ نہیں چلا. 100 کروڑ کا شہر ہے، اس میں کسی بھی نام نشان آدمی کا پتہ چلانا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں. ہاں، تم کون سے پولیس یا خفیہ کے آدمیوں کے تمہارے ڈسپوزل پہ ایسے لوگ ہوں جو اس کا کھوج لگا لیں؟ یہی تو پریشانی ہے مجھے. ہاں، پتہ نہیں، رہائی کے بعد فراز سے اس کی ملاقات ہوئی؟ جہاں تک مجھے پتا ہے اس
نے فرح سے کوئی رابطہ کیا نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرح کے بیہیویئر سے تو یہی پتہ چلتا ہے بہت نارمل بیہیو کر رہی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے منصور کہ اس دوران میں فرح کا ذہن ہی بدل گیا ہو. کیا ہو گیا تمہیں اشرف؟ جس شخص کی زندگی غارت ہو گئی ہو وہ نفرت نہیں کرے گا تو کیا محبت کرے گا؟ اور نفرت جو ہے وہ محبت سے کہیں زیادہ تہس نہس کر دینے والا جذبہ. یا منصور یہ بات کہہ کر تو تم نے مجھے میں تمہیں پریشان نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس بات میں بڑی حیرت ہے کہ اب تک اس نے فرح سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ خدا کا شکر ہے کہ آپ تینوں آج مجھے مل گئے، نہیں تو آپ لوگوں سے ملنا میرا مشکل ہو گیا تھا. بھائی میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا تھا کہ میں نے آپ تینوں سے کور سٹوری کے لیے آئیڈیا مانگا تھا اور آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اچھی سٹوری کا ملنا مشکل ہو جائے. سر آج کل ہمارے یہاں برین ڈرین کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. اسکلڈ اور ایجوکیٹڈ لوگ بڑی تیزی سے باہر کی طرف جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس حوالے سے کیوں نہ کور سٹوری کی جائے. سر عام لوگوں کے لیے اس سٹوری میں کوئی خاص تھرل نہیں ہوگا. مہر تمہارا اس بارے میں کیا ہے؟ سر ہمارے شہر میں گینگ وار شروع ہو چکی. پچھلے دنوں ایک انڈر ورلڈ کا کنگ رہا ہوا تھا، اس پر حملہ بھی ہوا تھا. وہ بچ تو گیا لیکن دونوں گروپس میں بہت جھگڑے چل رہے ہیں. مہر میں سمجھی نہیں، تم کیا سجیسٹ کر رہی ہو؟ کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ مختلف گینگ کے آپس کے جھگڑوں پر ہم کور سٹوری بنائیں گے؟ جی ہاں سر، میں سمجھ رہی ہوں کہ ایسی اگر ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ تیار ہو تو اس میں ہمارے لوگوں کا بھی معلومات میں اضافہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی ایک سینسیشنل سی رپورٹ بن جائے گی. سر آئی ایم ویری سوری، میں اس سٹوری میں بالکل کام نہیں کروں گا. ارے بھائی تم کام کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے ابھی میرے سہرے کے پھول بھی نہیں کھلے. یاسر تم کیسے جرنلسٹ ہو؟ جرنلسٹ کا مقصد یہ تو نہیں کہ جان ہتھیلی پہ لیے پھرے. جرنلسٹ ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے. ہر سال درجنوں جرنلسٹ آن ڈیوٹی مارے جاتے ہیں. آئی ایم سوری، مجھے مرنے کا بالکل شوق نہیں. کوئی بات نہیں سر، یہ تجویز ویسے بھی میری تھی. I'll handle it myself. اوکے، اس میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. یہ تو اور اچھا ہے، ایک سے بھلے دو. تمہارے خیال میں تم اس کو ہینڈل کر سکو گی؟ I'm dead sure, sir. That's great. کیا بات ہے، آج ہمارا شہزادہ بہت غصے میں ہے. ارے آپ آگا بھائی. ہاں، کس کا نمبر چاہیے تمہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں انکوائری ڈائل کر رہا تھا؟ اطمینان رکھو، ہم نے تمہارے فون پہ آبزرویشن نہیں لگائی. بھائی ظاہر سی بات ہے، 10 برس جیل میں رہے ہو، سارے نمبر تبدیل ہو گئے اور نئے نمبر انکوائری سے ہی پتہ کیے جا سکتے ہیں. واقعی بظاہر سامنے کی بات ہے، میرے ذہن میں بالکل نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ 17 پر ہی تکیہ رہے گا یا اپنے راز میں اس خون شریک بھائی کو بھی شریک کرو گے؟ آگا بھائی میری ماں تھی، موت اسے مجھ سے چھین کر لے گئی. ایک دو اختیاری رشتے تھے وہ بھی اب نہیں رہے. کچھ لوگوں سے مجھے اب میرا حساب برابر کرنا ہے، وہ برابر کر لوں. جیسا آپ کہیں گے وہی کروں گا. حساب اس طرح برابر نہیں ہوتے برخوردار جس طرح تم سوچ. خیر تم اپنے دل کے ارمان پورے کر لو، اس کے بعد وہی ہوگا جو میں کہوں گا. ہاں وہ
तुम्हें कहीं जाना है तो गाड़ी ड्राइवर तुम्हारे डिस्पोजल पे है? नहीं आका भाई, इस वक्त मुझे गाड़ी की नहीं, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। टैक्सी का किराया लेते जाना। आपने बहुत कुछ दे दिया मुझे, इत्मीनान रखिए, पैसे हैं मेरे पास। मिठू। जी सर। रजा मेरा खून शरीक भाई है। जी सर। आज से तेरी ड्यूटी उस पर है। मैं समझी नहीं सर। उसका साया बन जा, उसके साथ रहे, लेकिन उसे पता न चले। और मिठू, अगर रजा को कुछ हो गया तो मैं अपने हाथ से तेरा गला काट दूंगा। जी सर। उसे पता न चले, वरना भड़क जाएगा। जो हुक्म। हेलो। आदाब भाई साहब। भाई साहब मैं मोना बोल रही हूँ। जी, कैसे मिजाज है? कल हम आपको फोन करते रहे, मैं और मेहर, हाँ घंटी बजती रही। वो भाई साहब मैं घर पर थी ही नहीं, इसलिए फोन ना कर सकी। तो फिर आप इस वक्त कहाँ से बोल रही? भाई साहब इस वक्त मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। वो एक्चुअली मैं आते हुए आपको बता के ना आ सकी, आई एम सॉरी। वो ऐसा हुआ कि रात को अचानक भाई का फोन आया, उन्होंने कहा कि अम्मा को हार्ट अटैक हुआ है, और मैंने 4 जोड़े कपड़े बैग में रखे और सुबह सवेरे की फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुंच गई। और फिर यहाँ आने के बाद तो मुझे बिल्कुल किसी बात का होश ही नहीं रहा। जी मैं समझता हूँ, मेडिकल इमरजेंसी में किसको होश रहता है। जी भाई साहब, आप तो खुद इन मरहलों से गुजर चुके हैं, आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी अम्मी अब कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई साहब, अब बहुत बेहतर है। तभी मुझे ख्याल आया कि कम से कम मैं आपको आज फोन ही कर लूं। जी तो फिर अभी तो आप कुछ दिन मेरा ख्याल है वहीं रहेंगी? जी भाई साहब, मैं उस वक्त तक यहीं रहूंगी जब तक कि अम्मा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। और वैसे भी मैं आजकल कराची में अकेली ही थी। अच्छा मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। जी भाई साहब, आपको नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी। अच्छा ये तो बताइए कि मेहर बेटी कहाँ है? जी मेहर कोई खास रिपोर्ट तैयार कर रही है आजकल, बस दिन रात का होश नहीं है, इस वक्त भी गायब है। चलिए अच्छा है कि वो मसरूफ है। वैसे आपकी आवाज से मुझे आपकी भी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। अब मैं पहले से बेहतर हूँ। ये अंजुम कहाँ गायब है? हफ्ते 1.5 हफ्ते से उन्होंने भी टेलीफोन नहीं किया। जी तकरीबन रोज ही टेलीफोन करता है, बस अपने कामों में मसरूफ है। चलिए ये तो अच्छा है कि अपने काम में मगन है। अच्छा भाई साहब मुझे अब इजाजत दीजिए, मेहर को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और दुआएं दीजिएगा। अच्छा जी ओके, अल्लाह हाफिज। जी खुदा जी। उफ़ो आया आया जी फरमाइए, किससे मिलना आपको? आपसे। मुझसे? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैं आपको पहचान चुका हूँ आसिफ साहब। आपको अपनी मरहूमा चाची राबिया खातून का बेटा क्यों याद रहेगा? हो, तुम राबिया चाची के बेटे हो, रजा। शुक्र है आप अपनी चाची को तो पहचान गए। बहुत शक्ल बदल गई है तुम्हारी, पहचाने नहीं जा रहे। आप जेल भेज दिए जाएं तो आपकी भी सूरत पहचानने में नहीं है। क्या लेने आए यहाँ पर? वैसे ये बात तो सही है कि हमारे शहर में अंधेर नगरी चौपट राज हो चुकी है।
मालिक मकान से पूछा जा रहा है कि यहाँ क्यों आए। बकवास बंद करो, यहाँ से चले जाओ। जानते हो चची तुम्हारे सदमे से मर गई, वो बीमार पड़ गई थी। मैंने उनका इलाज मुआवजा करवाया और वो ये घर मेरे नाम कर गई। गाली देते हो मुझे? सब मैं आपको कैसे गाली दे सकता? जब तुम रुपए की बात करते हो, एहसान की बात करते हो, तो गाली देते हो मुझे, समझे तुम? आप अपने चचाजाद भाई को घर के अंदर भी नहीं ले जाएंगे? एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएंगे क्या? बकवास बंद करो और यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। तुम्हारी वजह से हम यहाँ जलील ख्वार हो गए। मैंने आपसे मकान की सेल डीड दिखाने को नहीं कहा। मैं तो आपसे अपनी मरहूमा माँ की कब्र का निशान पूछना है। मैं तुम्हारी माँ की कब्र का मुजावर नहीं जो बता अपनी माँ की इज्जत खाक में मिला दी। अब किस मुंह से अपनी माँ की कब्र पर जाओगे? ये बुझावर वाला जुमला याद रखना आसिम शिरा से। मुझ जैसे दिलजलों से जुमले बोलने में एहतियात करनी चाहिए, समझे? आदाब। रात कहाँ तशरीफ रखते थे आप? मैंने आपसे बतौर खास दरख्वास्त की थी कि जरा जल्दी घर आ जाइएगा और घर ही पर रहिएगा रात को। कुछ लोग मेहमान हमारे रिश्तेदार खाने पर आ रहे हैं। आप बाबा, मैं एक काम में उलझ गया था, इसलिए मैंने मम्मी को फोन नहीं किया। क्या काम था, जरा मैं भी तो सुन। वो मैं साइट ऑफिस गया था। मैं साइट में तो बाहर क्या करने तशरीफ लेकर गया? झाड़ के पीछे पड़ जाते हैं। शुरू कर दिया आपने हिमायत अपने साहबजादे की? अरे बेटा, नाश्ता करके जाना, ऐसे नहीं जाना। अरे भाई, इनका तो ये रोज का मामूल है। रात को देर से घर आते हैं, दफ्तर से दरमियान में उठकर चले जाते हैं, न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। जब इनसे पूछो कि भाई कहाँ तशरीफ ले गए थे आप, तो कहते हैं मैं काम से गया था। लेकिन जब ये पूछा जाए कि काम क्या था तो इनसे जवाब नहीं बन पड़ता। मम्मी, मुझे भूख नहीं है, नाश्ता नहीं करूंगा। आपका भी तो ये जवाब होता है। आप कब मुझे बता के जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप ही का बेटा है, आप ही की तरह बिहेव करेगा। वह आपके नजदीक मेरे और आरिफ की पोजीशन में कोई फर्क नहीं है। हाँ, मैं तो खुद नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम जाना चाह रहे थे इसलिए मैंने नहीं रोका। मैं छोड़ूंगा नहीं आगा भाई से, खून पी जाऊंगा अगर उसका। दुश्मनों का इलाज उनका खून पीना नहीं, उनका खून जलाना होता है। आप दुश्मनों को गोलियां मारते हो, ये काम तो मेरे मामूली नौकर करते हैं। जब सब काम दूसरे करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? तुम शहजादे हो, शहजादगी करो। हाँ, तुमने बताया था कि तुम सिविल इंजीनियर हो, इस काम से लाखों कमाए जा सकते हैं। हजारों और सैकड़ों सिविल इंजीनियर सड़कों पे मारे मारे फिर रहे आगा भाई। 4000 की नौकरी नहीं मिलती उन्हें। हाँ, जानता हूं, सैकड़ों फिरते मारे मारे, लेकिन तुम मेरे भाई हो, ताश आगा के भाई। तुम आज से मेरी कंपनी के डायरेक्टर हो और तुम्हारी तनख्वाह है 40,000। क्या भाई, मुझे तो कुछ याद नहीं है, भूल चुका हूं सब कुछ। दौलत, ताकत और कुर्सी सबको सब कुछ याद दिला देती है। तुम्हें भी भूला हुआ सबक याद दिला देगी रानी। जब तुम 25 लाख की गाड़ी से नीचे उतरोगे, जब तुम्हारे हाथ पर 1.5 लाख की घड़ी होगी और तुम्हारे पांव में 32,000 का जूता, तो तुम्हारे दुश्मनों को छठी का दूध याद आ जाएगा और तुम्हें भूला हुआ सबक
मुझे सिर्फ उस आदमी का नाम बता दो जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है। रजा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। उसका नाम अशरफ अली खान है। अशरफ अली खान? आप जानते हैं उसे? उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है पहले। नाम शायद है कि कहीं सुना हो, लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रहा। शमशाद, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ यार, मैं परेशान हूँ, मेरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप नौजवान आदमी हैं, नौजवानों के खर्चे तो होते ही। देखिए, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आप यहाँ ठाट से बैठे रहो, मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते रहे। नमक? आपने मुझे इतना कदीम समझा कि मैं नमक छिड़कूंगा? ये मैं तो आपके जख्मों को स्पिरिट से साफ कर रहा हूँ। मैं अपने जख्म तो साफ करूंगा, मगर उससे पहले आपका गला घोट दूंगा मैं। वाह मेरे मौला, बीवी मिली है तो ब्लैकमेलर, बॉस मिला है तो बेवकूफ, बंदा करे तो क्या करे? क्या? अबे तू बेवकूफ किसको कह रहा है? खुदा की कसम शमशाद, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक मिनट, देखिए, बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कहा है कि बंदा दोस्त की नौकरी ना करे। अब आप देख लीजिए, आप तू तड़ाक वो तड़ाए मेरे साथ। तो क्या करूं? तुम्हारा मसखरापन ही नहीं खत्म हो रहा है। आप बैठिए, रशीद रखिए, मैं बताता हूँ। हजूर बैठिए। आप मुझे ये बताइए कि आप इस दफ्तर के एमडी हैं या चपड़ासी? अरे मियां, घंटी बजाओ, अकाउंटेंट को बुलाओ, को इतने पैसे चाहिए, नहीं देता तो डिसमिस। वाह शमशाद साहब, आपने क्या मशवरा दिया भाई। आप बहुत बड़े पागल हैं। क्यों? अगर पापा को पता चल गया ना तो वो अकाउंटेंट तो वहीं रहेगा, मैं डिसमिस हो जाऊंगा। तुम्हारे पापा को खाना ही पड़ेगा। भाई ऐसा करो, उससे कहो कि सस्पेंस अकाउंट में डाल दे। सस्पेंस अकाउंट से कब तक निकालता रहूंगा? कभी ना कभी तो हिसाब देना पड़ेगा ना। वो जब तक हिसाब की बारी आएगी 2-4 महीने तो चैन से गुजरेंगे कि नहीं? हाँ यार, ये बात तो तुमने सही की कि 4-5 महीने तो चैन से गुजर जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, ये आइडिया आपके दिमाग में क्यों नहीं आया था खुद? पापा ने ये खोपड़ी किसी काम की नहीं रखी है। अपने दोस्तों को देखता हूँ, अपने अब्बा के साथ कितना खुश रहते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं। एक हम है कि अपने अब्बा की आवाज सुनते ही हमारी रूह फना हो जाती है। तारीफ उस खुदा की जिसने उन्हें बनाया। ये बताओ, तुम्हारे अब्बा का ताल्लुक कोई हलाकों के खानदान से तो नहीं? क्लास बंद करो। अच्छा, पैसे मुझे भी खुद दिलवा देना यार, भाभी को लेकर जाना है बाहर शॉपिंग पे। बुलाओ उसको। भैया, आखिर आप मुझे मेरे हाथ पर क्यों नहीं छोड़ देते? ये मैं नहीं कर सकता। जहाँ कहीं जाता हूँ, मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, लोग पूछते हैं कि बहन की शादी क्यों नहीं करते। तो फिर आप लोगों को ये क्यों नहीं बता देते कि आपने खुद ही मेरी शादी नहीं होने दी? फरहा, मैं इस किस्म के लहजे में बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज अशरफ, इसे इस तरह से तो बात ना करें। अव्वल तो ये कि इसको शिकायत करने का हक हासिल है, दूसरा ये कि लड़कियों से इस तरह बात करना नामुनासिब है। आप इसे ये क्यों नहीं समझाती कि बड़े भाइयों से इस तरह बात नहीं की जाती? आपने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। What? जी, मैं चुप रही हूँ, मैं घर छोड़ के चली नहीं गई। इसलिए आप समझते हैं कि मैं बुज़दिल हूँ, लेकिन भैया मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं अगर अभी तक यहाँ पर हूँ तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं आप सबसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे नादरा का ख्याल है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। वरना जो कुछ आपने मेरे साथ किया है ना। अशरफ, आइंदा से आप इसके सामने शादी का कोई जिक्र नहीं करें। इसे शादी करनी होगी, ये खुद हमें बता देगी। इसको आप इसके हाल पर छोड़ दीजिए। चलो। अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में तो टाइम लगता ही है ना। ये तो तुम ठीक कह रही हो, मगर मेरा ख्याल है तुमने टॉपिक बहुत खतरनाक लिया है। मसला तो फिर खतरनाक काम ही आता है ना। मैं तो समझती हूँ सुहेल ने अक्लमंदी की जो इस चक्कर से निकल गया। तुम्हें मुश्किल लगता है तो तुम भी छोड़ दो, मैं अकेले कर लूँ।
नहीं भाई, मेरा ये मतलब कहाँ है, मैं तो सिर्फ यूं ही लाउड टॉक कर रही थी। अच्छा हाँ, एक खुशखबरी। वो क्या? वो आदमी है ना जिस पे जेल से रिहा होते ही हमला हुआ था, उससे मेरा कांटेक्ट हो गया। मगर तुम तो बता रही थी कि हर मर्तबा जवाब मिलता है कि वो शहर में नहीं है। अरे शादिया, ये तो लोगों के टैक्टिक्स होते हैं। अब इससे अच्छा और क्या बहाना हो सकता था कि साहब शहर में ही नहीं है। तुम्हारी उससे खुद बात हुई है? हाँ हाँ, डायरेक्ट बात हुई है और उसने अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट भी दिया है। और उससे मुलाकात कहाँ होगी? मुलाकात कहाँ होगी? उसके घर पे होगी और कहाँ होगी? ओह माय गॉड, अब तुम उसके घर पे जाओगी? हाँ हाँ, मैं उसके घर जाऊंगी और तुम भी मेरे साथ चलना। ओके, मैं भी साथ चलूंगी, क्योंकि ये सब चीजें तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ का एक हिस्सा है। वो तो है। मुबारक हो शहजादे, मुबारक हो। ये ओहदा, ये ताकत और ये कुर्सी एक एक करके तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे कदमों में डालती रहेगी। होश डालो इन्हें, अब तुम्हारी नहीं तुम्हारे दुश्मनों की रोने की बारी है।